students of the BSc third year classes. Now another topics which are related to the ecosystem is starts to the productivity, food chain and food web also. So what about to the productivity? This is related to the flow of energy which are studied into the previous lectures. During to the whenever striking up to the radiant energy by the plants or the green plants, which also called to the producers. To the producer strike to the radiant energy, then chemical energy, and that is the process which are done by the photosynthesis, so that at this time to the total amount of the energy by the doing the plant through the photosynthesis and the chemosynthetic processes and the formation of the compound, this is called to the productivity. तो इस चैप्टर में हम जो है प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, जो कि आपके फ्लो ऑफ एनर्जी से ही रिलेटेड है. और फ्लो ऑफ एनर्जी या ये कहें जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हर स्टेप पे होता रहता है, हर लेवल पे होता रहता है, तो उसमें जो है वो उत्पादन, चूंकि उत्पादक जो होता है वो प्लांट है जिसको आप प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, तो कितनी प्रोडक्टिविटी को फॉर्म किया है उसको क्या बोला जाता है, कितने अमाउंट में वो हर लेवल पे भेज रहा है, which are sending to the transformation of to the energy in each tropic level, so that to the how much products which are formed, that's a product during to the photosynthesis and the chemosynthetic activities of the plants, that is called to the productivity. But to the how the productivity is are showing, so that to in this process to the productivity is defined by the grass primary productivity, grass primary productivity, second is net primary productivity, productivity. So to try to understand about the grass primary productivity, तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इसके अलावा भी प्रोडक्टिविटीज होते हैं. पहले हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से. तो जैसा मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उस पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जो उसका अमाउंट होता है एनर्जी का, वो हर स्तर पे 10% के हिसाब से होता है. इसका मतलब इसका ये है कि 10% लॉ होता है कि ईच ऑफ द लेवल्स which are received only 10% of the energy after the consuming of the label, so that this energy is utilized by the vital activity in the vital activities or the in the respiration process, so that to the productivity which are firstly which formed by the green plants, and that is goes to the in the consumers level. That is here to the grass primary productivity. In the diagrams, for the diagram, that is the sun, and through the receiving to the, that's to the form to the box for the understanding about to the flow of energy. This box which formed by the GPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है. यहाँ पे इसी देखिए हमने यहाँ पे एक एरो बनाया, और इस एरो के माध्यम से यहाँ से जो एनर्जी इस
प्राइमरी जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाया गया है, अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, यहाँ पे ये P मतलब प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर्स के द्वारा ये पूरा का पूरा जो है प्रोडक्टिविटी क्रिएट किया गया, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब जानते हैं कि प्लांट जो है अपने रेस्पिरेशन या वाइटल एक्टिविटीज में अब एनर्जी को खर्च करेगा। तो देखिए यहाँ से एनर्जी जो है खर्च हो रही है उसमें, उसके बाद वो इन्वायरमेंट में डिसिपेट करती जा रही है। एरो के माध्यम से हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो वहां से एनर्जी यूज हो गई। और अब यहाँ पे जितना एनर्जी इसके बाद निकलने के बाद बचेगी उसको NPP बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसलिए देखिए GPP से जो बॉक्स है उसका छोटा हो गया क्योंकि वहां से एनर्जी होगा। तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, 10% लॉ के हिसाब से यहाँ पे तो 10% यहाँ पर अगर 90% एनर्जी लॉस हो गई तो 10% ही एनर्जी इसको मिली NPP। तो अगर हम जो है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो the total rate of the photosynthesis including into the organic matter used in the respiration during to the total photosynthesis, or which in the in other words we can say that to the total amount of the energy which are consumed formed by the green plant as a producers. So GPP यहाँ पे आपने देखा, इसके बाद यहाँ से एनर्जी यूज हुई, ये NPP है। अगर हम अब दूसरे सेंस में अगर हम NPP को जानने का प्रयास करेंगे तो एक सेंस ये आता है कि GPP माइनस रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन क्यों लिखा जा रहा है कि वाइटल एक्टिविटी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमेशा क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन जो है बिलोंग करके उस प्रोसीजर्स में यहां से GPP में टोटल अमाउंट में गया, टोटल अमाउंट फॉर्म हुआ, उसके बाद वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में उस एनर्जी को खर्च कर रहा है। अब इससे जितना बचेगा उसको NPP बोलते हैं। तो इसलिए GPP माइनस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टू NPP, नेट, उतना नेट प्रोडक्टिविटी हमें प्राप्त हो जाएगी जो कंज्यूमर्स लेवल को इंडिकेट करती है। यहाँ पे ये नेट प्राइमरी। अब आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, क्रम में चलेंगे, तो अवेलेबल फॉर दैट। अब यहाँ से देखिए कुछ एनर्जी फिर से यहाँ से बाहर एनवायरमेंट में जा रही है, डिसिपेट कर रही है। देखिए ये इस प्रकार से हमने बनाया, तो देखिए बॉक्सेस लगातार जो है क्रमशः कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर लेवल पे each of the label which have to the only 10% of the energy in the ratio, that is the through the boxes, and the boxes which are goes to the there are the very thinner from to the GPP, then NPP, and after that to the another one, so that this is goes now to the another activities. So this is the process एक डायग्राम के माध्यम से हमने यहाँ बताने का प्रयास किया आपको कि जो है यहाँ पे कुछ एक आज जो है हमने इस तरीके से एरो भी दिखाया, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ये देखें एक एरो यहाँ पे ये लगा है कि कुछ इमिग्रेंट, जैसे आप जानते हैं माइग्रेशन एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें आइमिग्रेंट और इमिग्रेंट दो प्रक्रियाएं होती हैं। तो कुछ आइमिग्रेंट जो IMMIGRATION बोला जाता है, आइमिग्रेंट मतलब पॉपुलेशन, आपको समझना पड़ेगा द पॉपुलेशन, द ग्रुप पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज। तो द एनिमल्स और द प्लांट्स, other species which are belonging to the other species which are alive into the specific geographic areas which want to that about the all the requirements, so that where are to the if the new species which are joined in this area in this population, so that
called to the immigration. If the any kinds of the members which are goes to the another area, so that cut to the immigration. And where the migration process is that takes place, migration is that important for to the two-way process. If the members which are goes to the another area for that to the particular purposes and that's to the return out, वो फिर से वहां पे वापस आ जाएगा, तो ये माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पे एरो लगाने का मतलब है इमिग्रेंट जो होते हैं वो यहाँ पे आके एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो बॉक्सेस में देखिए इस प्रकार से एनपीपी में जो सदस्य होंगे वहां से फिर से एनर्जी बाहर निकलेगी। उसी प्रकार से इमिग्रेंट आए, फिर कुछ जो एनर्जी बची है वो अगले लेवल डिकम्पोजर्स और लास्ट में रीजन्स कहलाते हैं। तो इस पूरे फॉर्म में, पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो लगातार जो है एनर्जी 10% के रेशियो से ही जाएगी। इसको वहां पे साइंस में 10% लॉ के नाम से जाना जाता है। 10% लॉ के से ही एनर्जी जो होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी जो एनर्जी वो वहां से ट्रांसफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल पे जाती है। तो आपको वहां पे मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि किस प्रकार से एनर्जी जो है कहाँ से थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से जो है यहाँ से चलती है। इसके बाद नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होती है, जहाँ पे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी अब नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। जब किसी एक प्रकार के ही स्पीसीज, ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज विच आर अलाइव in the specific geographic area, that is called to the population, but is the biotic communities which are live in the specific areas, that is called to the communities. So community and the population have to the major differences. Population और community में यहाँ पे difference है। तो यहाँ पे net community productivity को respond किया गया है। तो net कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो एनपीपी माइनस और जो कि अब जो कंज्यूमर्स ग्रुप हैं उनके द्वारा जो एफर्ट्स किया जा रहा है, जो एक्टिविटी की जा रही है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक कंजप्शन, हेटेरोट्रॉपिक कंजप्शन, ये क्या आपने समझा, एनपीपी। इसके बाद आफ्टर दैट 10% बचा, तो कंज्यूमर्स के द्वारा आप जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो हर लेवल पे देखिए एनर्जी कुछ तो उत्सर्जित होगी, वहां उष्मा के रूप में निकल जाते हैं, हीट जिसको बोलते हैं हीट के रूप में निकल जा रहे हैं, कुछ जो है ट्रांसमिट कर जाती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर क्या है, वही एनर्जी लगातार निकल रही है। तो एनपीपी में से उसको क्या है, हेटेरोट्रॉपिक कंजप्शन, मतलब पूरी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो कंजप्शन है उसको माइनस कर दिया जाए, तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी हमें प्राप्त हो जाएगी। वी वांट net community productivity obtained after the NPP minus heterotropic consumption, all the consumptions of primary, secondary and tertiary, that is a minus into the NPP which found the net community productivity मिल जाएगी हमें। और एक लास्ट है secondary productivity, चौथे हम दिखाएंगे net secondary productivity सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल एज रिफर्ड टू द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो सेकेंडरी
कंटिन्यूअस लेवल पे जितनी एनर्जी को कंज्यूम किया गया वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। तो आपने ये समझ लिया कि 4 प्रकार की प्रोडक्टिविटी, जिसमें जीपीपी और एनपीपी का बहुत विशेष महत्व है। और ये जो है कि हमारे जो एनर्जी फ्लो, जिसको इकोसिस्टम के अंतर्गत इस प्रकार का ग्राफ बनता है, जहाँ पे लगातार एनर्जी निकल रही है, कुछ इमिग्रेंट के माध्यम से कंज्यूम हो रही है और बॉक्स हमेशा सिकुड़ते चले जा रहे हैं, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एनर्जी जो है लैग कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है एनर्जी देखिए हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कभी भी सर्कुलेट नहीं होती एनर्जी। सर्कुलेशन मटेरियल्स का होता है। तो ये हमेशा ध्यान रहे। जस्ट रिवाइंड टू दैट अबाउट टू द always energy which are goes to the upright condition, never in the circulate, so that to the this is the productivity। अब हम बात करेंगे इस आगे चैप्टर्स की। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड अगले चैप्टर की, जिसका नाम है फूड चेन। कि इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होता है, व्हाट अबाउट टू द फूड चेन। इकोसिस्टम जो अपने आप को एज अ कैरेक्टर कैटेगराइज करता है, उसमें एनर्जी फ्लो और सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल आता है, जहां पे एनर्जी का सर्कुलेशन है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर बाय देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वो एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं और फूड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं कि द इकोसिस्टम विच आर कैटेगराइज्ड बाय टू द इंटरकनेक्शन ऑफ टू द या और flow of energy and circulation of the material, that it means to the plant and the animals which are interconnected on the behalf of the nutritional requirement। तो भोजन पोषण के लिए वो उस पर आधारित होते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होता है, फूड चेन का मतलब क्या है। तो अ फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज A food chain can be defined as the group of organisms in which a food chain can be defined by as a group of organism which there is a transfer of food energy, there is a transfer of food energy through a series of repeated eaten and being eaten, eating and being eaten. This is like very important in the food chain. You are just concentrate in this sentence. A food chain can be defined as a group of organisms which there is a transfer of food energy through a series of repeated eating and being eaten। फूड चेन को डिफाइन किया जा सकता है जो कि ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत
फूड जो एनर्जी होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और कैसे होता है? थ्रू अ सीरीज ऑफ रिपीटेड, एक सीरीज के क्रम में होगा जहां पे एक दूसरे को भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं। ईटिंग एंड बीइंग ईटेन, एक दूसरे को भोजन के रूप में क्रमशः जो है ग्रहण करते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ द organism in which to the flow of energy or the food energy through the series repeated eating and being eaten। देखिए repeated शब्द आया है, तो repeated शब्द का मतलब होता है वो बार बार एक दूसरे को भोजन के रूप में एनर्जी को प्राप्त करने के लिए repeated फॉर्म में वो हमेशा यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से जो इकोसिस्टम के अंतर्गत जो एक दूसरे का कनेक्शन होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम सिंपल फूड चेन के रूप में हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें एक जनरल फॉर्म में, तो अब आप देखें कि जैसे अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में लें, तो अब देखिए एक कोई अगर छोटा ग्रासेस है, ग्रासेस के फॉर्म में हमने दिखा दिया, ग्रासेस है ये इस रूप में। तो ग्रासेस क्या है? ग्रासेस जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी? प्रोड्यूसर्स कहलाएंगी। ये क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर्स। अब अभी हम केवल फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑनली रिप्रेजेंटेड टू द फूड चेन दैट इज इन दिस लेवल। तो हमने एग्जांपल लिया कि अगर ग्रासलैंड हो, एक ग्रासलैंड मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, उसके अंतर्गत किस प्रकार से भोजन के रूप में जो रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रास है जो कि प्लांट का यहाँ पे फॉर्म है, प्रोड्यूसर्स के रूप में है। और यहाँ पे तो अगर यहाँ पे ग्रास को लेते हैं तो ग्रास को एज अ फूड, ग्रासोफर जो होता है, ग्रासोफर वो जो है इसको क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ईट करता है। अब ग्रासोफर अगले स्टेप में, ग्रासोफर को अगर हम कहें फ्रॉग, वो फीडअप कर लेता है। फिर अगले स्टेप में देखेंगे तो क्या होगा? फ्रॉग को स्नैक फीडअप कर लेगा, और लेवल पे जाएंगे तो हॉक जो होती है वो स्नैक। तो देखिए लेवल टू लेवल चल रहे हैं हम, एक लेवल के आधारित। तो क्या है? अ सीरीज, देखिए एक सीरीज है। This is the form to the a series from to the producers to top consumers, from to the producers to top consumer. If the producers is the majority form to the base and form to the first trophic levels, that is goes to the which are feeding by the grasshoppers as a herbivorous into the primary consumer. Then the primary consumers, grasshoppers is the primary consumer as in the form of to the herbivores because it is the feed to the plants and the plant products. So after that in this series, that is the grasshopper is the feeding by to the frog in this condition, and after that is the snake is the feeding to the frog, and finally if the top class carnivorous which are find to that to the snake is the feeding. As like same into the ponds ecosystem to the phytoplankton, then is feed by the zooplankton. Zooplankton is the small fishes and then large fishes. So that is the form to the in the another ways to the cropland ecosystem where the seeds is feed by to the rats, and rats is the snake, and the snake is the hawks. So that to the different types, that is the this is the through the repeated connection, repeated eating of feeds grasshopper, then grasshopper is the frog, frog is the snake, snake is the hawks. यहाँ पे एक चीज हम आप बताना चाहते हैं कि यहाँ पे दो बातें हैं। इकोसिस्टम को रिटेन रखना है तो फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए, और फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होगी? वो भोजन के रूप में, यहाँ पे इसलिए फूड एनर्जी लिखा है। तो यहाँ पे हर जो मेंबर्स है, हर जो यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे जो है जो कंज्यूमर्स ग्रुप है, वो एक दूसरे को भोजन के रूप में
फीड कर रहा है और एनर्जी को प्राप्त कर रहा है, और एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में लगातार कंटिन्यू कर रही है, कांस्टेंट रूप से चल रही है। दूसरा फैक्ट ये है कि किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए जो उसके जो मेंबर्स होते हैं, जो प्राइमरीली मेंबर्स होते हैं, उनकी संख्या लगातार अमूमन मोस्टली जो है सब में, हर प्रकार के सिस्टम में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर, क्योंकि सिस्टम जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो उनका जो ग्राफ्स होता है, उनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। कोई अपराइट होती है, कोई इन्वर्टेड होती है, कोई सिग्मॉइड होती है। तो हर में तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं उनमें जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो एक दूसरे को मेंटेन करने के लिए द नंबर ऑफ टू द थ्रू द सीरीज, that is the feed by the maintaining the numbers of the each levels to maintain, to retain to the proper ecosystem. If the number of the any tires which are goes into the more and more are the exponential, so that to the lack of the ecosystem, because they are to the more and more resources are utilized by this group, so that to the lacks of to the other connection or to the series is the totally or the entirely lacks. तो कहने का मतलब होता है कि इसके नंबर को भी मेंटेन, एक जो दूसरा एस्पेक्ट हमने निकाला कि एक तो एनर्जी के फ्लो के लिए लगातार चैनल चल रहा है, दूसरा उसी कॉन्सेप्ट में ये आ जाता है कि लगातार जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया, क्योंकि इसको रिटेन रखना है, नंबर्स हमेशा बराबर किए जाते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करके, इस प्रकार से। तो किसी भी एनी काइंड्स ऑफ द इकोसिस्टम व्हिच आर टेक्स टू द एग्जांपल, दैट इज द रिलेटेड टू द रिलेटेड on the behalf of to the food, and that's to the eating being eaten. This line is very important, this words is very important in the food chain, repeated eating and being eaten, एक दूसरे को भोजन के रूप में लगातार क्रमशः फीडअप करते रहते हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं फूड वेब की तरफ। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बता दिया। तो इसी चैनल में अगर हम फूड चेन में अगर हम बनाएं तो देखिए सन हो गया, सन से एनर्जी को प्राप्त किया प्रोड्यूसर्स ने, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर ने एनर्जी को प्राप्त किया, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर ने। अगर क्वार्टरली कंज्यूमर है तो वहां पे लिखा जाएगा, नहीं तो फिर अदरवाइज हम डीकंपोजर्स लिख देंगे। डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स आप जानते हैं कौन है, बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं, सॉरी वायरसेस नहीं, फंजाई एंड फंगस होते हैं, फंजाई। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये है वो ऑर्गेनिक मैटर को फ्री करके वाटर और सॉइल में भेज देंगे, वाटर एंड सॉइल। तो आप देखें लगातार इस क्रम में ये सन हो गया, सन से एनर्जी को प्राप्त किया, रेडिएंट एनर्जी को प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट ने प्राप्त किया, और ये भोजन को बनाया 10% के रेशियो से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, आफ्टर टर्सरी कंज्यूमर, एंड देन फाइनली आफ्टर द डेथ which are goes to the degraded by the decomposes bacteria and the virus fungus। तो डिग्रेड कर देते हैं और उनको जो है एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, वाटर एंड सॉइल में। और जबकि फिर से प्रोड्यूसर्स के द्वारा वो बनाना होता है तो फिर से ये प्राप्त कर लेते हैं नेचर में, और यहाँ पे H2 और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी मदद से। तो ये चैनल देखिए, ये वही चैनल हमने यहाँ पे दिखाया। अब हम बात करेंगे इसी क्रम में जो है टाइप्स ऑफ फूड चैन की। तो टाइप्स ऑफ फूड चैन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फूड चैन, टाइप्स ऑफ फूड चैन को देख लेते हैं। There are the two types of the food chain which are found in the nature: grazing food chain and detritus food chain. Grazing food chain and detritus food chain. Detritus food chain. तो देखिए ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है, ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम टू द ग्रीन प्लांट
and reach to the grazing food chain, start from to the grain plant and goes to the level of the consumers, that is the carnivorous via to the herbivorous। तो कहने का मतलब है कि ग्रेजिंग जो ग्रेज जहाँ से प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो हर्बीवोरस जो होते हैं उनको ग्रेज करके या फिर किसी माध्यम से जो सीड्स होते हैं, उनके लीव्स होती हैं, उनके सूट्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, जो भी जिस माध्यम से एनी काइंड्स ऑफ द मीडियम विच आर गोज टू द एनी फॉर्म्स, तो वहाँ से जाते हैं तो हर्बीवोरस। तो हमने कहा कि विच आर स्टार्टेड फ्रॉम टू द ग्रीन प्लांट एंड रीचेस इनटू द टॉप कार्निवोरस, दैट इज द कार्निवोरस वाया टू हर्बीवोरस। तो बीच में हर्बीवोरस है तो वहां तक। तो तीन लिया आपने, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। ये तीनों को जो है जब मिला दिया जाता है ग्रेजिंग फूड चेन के अंतर्गत आता है। तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स, देन हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स कहा जाता है, हर्बीवोर्स कहा जाता है, और फिर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये किस में आ गया, ग्रेजिंग फूड चेन। आप नाम से ही पकड़ सकते हैं, दिस इज द tactics for that to the identify to the grazing food chain to the started from to the तो यहाँ पे उसी प्रकार से एनर्जी वहाँ आगे बढ़ती है। अब देखिए दूसरे प्रकार में क्या है, डिट्राइटिस फूड चेन। डिट्राइटिस का मतलब होता है आफ्टर द डेथ एंड डीके, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिट्राइटिस मतलब डेड मटेरियल से, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से जो भोजन को प्राप्त करते हैं वो डिट्राइटिस फूड चेन के अंतर्गत होते हैं। जिसके अंतर्गत हमने पहले भी बताया है कि बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोअन्स है, इंसेक्ट है, क्रस्टेशियंस है, मोलस्कस है, एनिलीड्स हैं, नेमाटोड्स हैं, एंड सम ऑफ द आल्सो वर्टिब्रेट्स इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। सो दैट टू द numbers of to the members which are finding in this category which receive from to the food material and that to the survive their life, so that to the detritus organic and dead material derived from the grazing food chain or termed as detritus। तो यहाँ से जो ग्रेजिंग फूड चेन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ से आप जानते हैं कि डिकम्पोजर्स की शुरुआत होती है। डिकम्पोजर्स की शुरुआत होती है तो डिकम्पोजर्स के रूप में ये आते हैं और ये डिग्रेड कर देते हैं और वहाँ से एनर्जी को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद इसको इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको फ्री कर देते हैं और इन्वायरमेंट में इसको छोड़ देते हैं जहाँ से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो प्रकार जो है, तो लिंक बिटवीन द ग्रेजिंग एंड द डिट्राइटस फूड चेन, एनर्जी इंटर्स इनटू द डिट्राइटस फूड चेन फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन as a dead organic energy। तो जबकि ये इनकी मृत्यु हो जाए, इन सब की मृत्यु हो जाएगी, तभी डिकम्पोजर्स को भोजन या एनर्जी प्राप्त होगी और जिसके आधार पे वो अपना जीवन को चलाएंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे और उसके माध्यम से चलते रहेंगे। तो ये तो था फूड चेन के बारे में, जो कि हमने आपको बताया कि एनर्जी का सीधी सी बात है, फूड चेन का मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो एक रिपीटेड कंडीशन में लगातार, जो ग्रीन प्लांट से लेके जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ईटिंग बीइंग ईटन, मतलब कि एक दूसरे को भोजन के रूप में रिपीटेड रूप से एक क्रम में, सीरीज में वहाँ पे वो प्राप्त करते रहे और एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है। वो दो टाइप के होंगे, टाइप्स ऑफ द फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्राइटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग का मतलब यहाँ पे हमने बताया प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। डिट्राइटस का मतलब हमने डिकम्पोजर्स बताया, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोड्यूसर द हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। तो यहाँ पे ये डेड होते हैं और डिकम्पोज कर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो अगले जो सिस्टम होता है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड अगले चैप्टर में हम जो है कुछ इकोसिस्टम्स के बहुत जैसे कि फूड वेब की बात करेंगे, तो और उससे रिलेटेड ट्रॉपिक लेबल्स की बात करेंगे। धन्यवाद।